A very good evening, everyone. Welcome to our YouTube channel. So, let's begin with this today's drug of the day, which is statins. So, let's get started. As we know that statins belong to this class of hypolipidemic drugs, the ones which will reduce your the plasma lipid level. Okay, so you have various classes in there. That is, first is statins, that is HMG coenzyme reductase inhibitors. Then you have this fibrates, which are lipoprotein lipase activators. Then you have the sterol absorption inhibitors, bile acid sequestrants, and lipolysis and triglyceride synthesis inhibitor, of which we'll be focusing today on statins. So we have various drugs like lovastatin, simvastatin, pravastatin, atorva, rosua, pitavastatin, all the statins. Okay, we'll be studying them in detail. Next are these fibrates, which activate the lipoprotein lipase. Next is the sterol absorption. That means they will inhibit the absorption of sterols, which is only one drug, ezetimibe. And then we have bile acid sequestrants and the ones which inhibit the triglyceride synthesis and lipolysis. That in this way, they will help reduce the lipid level. Okay, so our drug of the day is the statins. We'll be studying all the statins in detail. So let's get started. Before going ahead, let's understand the mechanism of it. Now, lipids, as you know, they are carried in plasma in lipoproteins. Okay. The core of a lipoprotein globule, the core part, has triglyceride, cholesterol esters, the core part, okay, whereas the outer polar layer has the phospholipids and free cholesterols and upper proteins in them. Okay, so based on this, the lipoproteins are divided into 6 classes depending on the size and your density. Okay, so if you want to know this structurally, this is how it looks. The core is hydrophobic of triglyceride and cholesterol esters, whereas the outer part, if you see, you have this phospholipids and free cholesterols here along with this apolipoprotein. Okay, so this is how it structurally looks, the lipids. Okay, now this is the 6 classes that I've told you, that I've mentioned, that you have chylomicrons, you have chylomicrons remnant, VLDL, IDL, LDL, HDL. So how are they formed? How it begins? So let's understand them. As you know that dietary lipids have been absorbed in the intestine with the help of bile acids. Okay, so chylomicrons, these are basically the vesicles which are formed and passed into lacteals, that is your lymphatic vessels, and they will reach the bloodstream. Okay, so once they are into your bloodstream, they'll pass through the capillaries, and in the endothelium, we know you have this lipoprotein lipase. Okay, now in the endothelium, when you have this lipoprotein lipase, ये क्या करेगा, जो chylomicrons है, ठीक है, chylomicrons में आप यहाँ पे देख सकते हो that chylomicrons has more of triglyceride than the cholesterol esters. ठीक है, तो chylomicrons जब वो कैपिलरीज के अंदर जाएगा, तो वो जो एंडोथेलियम में जो एंजाइम प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, ये ट्राइग्लिसराइड्स को ब्रोक डाउन करेगा टू फैटी एसिड्स which will pass into the muscles. ये फैटी एसिड्स जो है वो मसल्स में जाएंगे एंड एज एन एनर्जी यूटिलाइज होंगे, या तो फैट सेल्स में जाएंगे टू गेट कन्वर्टेड, रिकन्वर्ट टू ट्राइग्लिसराइड्स एंड गेट स्टोर्ड. ठीक है, तो काइलोमाइक्रॉन्स क्या कहा गए, एंडोथेलियम में ये इस एंजाइम ने उसके ऊपर एक्ट किया, ट्राइग्लिसराइड्स को फ्री फैटी एसिड्स में कन्वर्ट किया, या तो वो फिर एनर्जी सोर्स में कन्वर्ट होंगे, या तो दे विल बी स्टोर्ड इन एज ट्राइग्लिसराइड्स. नाउ जो बचा हुआ है, द रिमेनिंग पार्ट इज द काइलोमाइक्रॉन रेमनेंट. ओके, सो काइलोमाइक्रॉन रेमनेंट में क्या बचा है, इट इज ऑब्वियसली द कोलेस्ट्रॉल पार्ट इज लेफ्ट नाउ. ओके, सो कोलेस्ट्रॉल पार्ट इज लेफ्ट और थोड़ा सा ट्राइग्लिसराइड है. ये जो काइलोमाइक्रॉन रेमनेंट होते हैं वो लिवर सेल्स ले लेता है. ओके, बिकॉज ऑफ द रिसेप्टर्स होते हैं लिवर सेल पे एलडीएल के, तो वो एलडीएल के रिसेप्टर्स से वो काइलोमाइक्रॉन रेमनेंट ले लेता है. ठीक है, एंड देन रीएस्टरिफिकेशन होता है, या तो उसको लिपोप्रोटीन में इनकॉर्पोरेट करेंगे या तो रीएस्टरिफिकेशन होगा. ठीक है, एंड दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू एक्ट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फर्दर. लिवर क्या करता है, अभी लिवर भी काइलोमाइक्रॉन्स रेमनेंट वगैरह उसने ले लिया, ये अभी वीएलडीएल को सिक्रीट करेगा, दैट इज वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन. तो वीएलडीएल में इफ यू कैन सी हियर, यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होते देन कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स. ठीक है, सो लिवर सिक्रीट करता है वीएलडीएल जिसमें ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होता है, थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स होते हैं.
ये VLDL अगेन एंडोथेलियल से पास होगा, लिपोप्रोटीन लाइपेज उसके ऊपर एक्ट करेगा, एंड देन सेम वे में क्या होगा, यू विल हैव द रेमनेंट पार्ट विच इज कॉल्ड एज IDL, अभी इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं इसको। इसमें भी अभी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है बिकॉज ट्राइग्लिसराइड्स तो कन्वर्ट हो गया है टू फ्री फैटी एसिड्स बाय लिपोप्रोटीन लाइपेज, तो इसमें भी कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज्यादा होता है। ओके, अबाउट हाफ ऑफ द आइडियल इज टेकन बैक बाय द लिवर सेल्स बाय अटैचमेंट टू एलडीएल, वही हो रहा है, आइडियल को फिर से एलडीएल रिसेप्टर्स ले लेंगे लिवर्स में जो प्रेजेंट होते हैं, एंड द रिमेनिंग कन्वर्ट होता है एलडीएल विच इज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब ये एलडीएल में इफ यू सी सिर्फ कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स होते हैं और कुछ नहीं होता। ओके, सो as we understood this, HDL के बारे में देख लेते हैं। HDL जो होता है, it is formed by taking the cholesterol from tissues and helps it transport of this cholesterol to liver। तो HDL क्या करता है, टिश्यूज से कोलेस्ट्रॉल लेगा, ठीक है, टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल लेगा और उसको ट्रांसपोर्ट करेगा टू द लिवर, और लिवर को दे देगा वो कोलेस्ट्रॉल जो भी है, ठीक है। Thus HDL जो होता है, that is high density lipoprotein, is a good cholesterol, ठीक है, whereas LDL, IDL, VLDL आर बैड कोलेस्ट्रॉल्स, ठीक है। यही जो LDL, IDL, VLDL जो ब्लड में घूमेंगे, हो सकता है वो वहां पे डिपॉजिट हो जाए, एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज करे, दे आर बैड कोलेस्ट्रॉल। HDL इज नॉट, HDL टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल लेके लिवर में डिपॉजिट करता है। ओके, सो लेट्स गो अहेड नाउ, यू वी ऑल्सो हैव टू रिमेम्बर दिस चार्ट जो है, ठीक है, कि किसमें क्या ज्यादा होता है, किससे मिलता है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ये पाथवेज है, एक्सोजिनस लिपोप्रोटीन पाथवे और एंडोजिनस होगा। तो एक्सोजिनस में क्या देख रहे हैं हम लोग को, कि एक्सोजिनस में इफ यू सी, ये जो लिम्फ में मैंने बोला था ना कि लिम्फेटिक वेसल से ये जो काइलोमाइक्रोन्स है, वही ये डायग्रामेटिक पिक्चर है जो भी हमने अब तक पढ़ा। तो काइलोमाइक्रोन्स वो जाएंगे ब्लड वेसल्स में, उसके ऊपर लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्ट करेगा जो एंडोथेलियम पे है, वो ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करेगा, जो मसल ले लेगा या एडिपोज टिश्यू या हार्ट एनर्जी के लिए, या तो स्टोर कर लेंगे फॉर इनटू ट्राइग्लिसराइड फिर से। ये रेमनेंट जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा, वो एलडीएल रिसेप्टर्स जो लिवर पे होते हैं वो ले लेगा, उसको कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और जो बचे हुए थोड़े बहुत कोलेस्ट्रॉल के फ्री कोलेस्ट्रॉल है, वो वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा, एथेरोजेनेसिस कॉज करेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ बैड कोलेस्ट्रॉल। नाउ ये होता है एंडोजिनस पाथवे। एंडोजिनस पाथवे में क्या होता है, इंटेस्टाइन से जो भी कोलेस्ट्रॉल लिवर में आया है, उसका क्या होता है, अगेन वो कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स में कन्वर्ट होता है, और इसमें जो ट्राइग्लिसराइड्स है वो कंबाइन होके एक वेसिकल में जाते हैं जिसको VLDL बोलते हैं। ये VLDL वेसिकल्स में ये दोनों है, थोड़ा ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होता है, ठीक है। अगेन सेम पाथवे, लिपोप्रोटीन लाइपेज आइडियल में कन्वर्ट होगा, फिर से LDL में कन्वर्ट होगा जिसमें सिर्फ कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स रहेगा। अब ये जो फ्री फैटी एसिड्स है या कोलेस्ट्रॉल है, वो अगेन मसल्स ले लेंगे, और जो फ्री वाला कोलेस्ट्रॉल है वो डिपॉजिट हो जाएगा कॉजिंग एथेरोजेनेसिस। तो ये एक्सोजिनस पाथवे है और ये एंडोजिनस पाथवे है, ठीक है। सो ये बेसिक डिफरेंस है, इस पिक्चर से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे एथेरोजेनेसिस होता है एंड हाउ कैन यू प्रिवेंट बाय यूजिंग दिस ड्रग्स। Now, coming on to the main part, HMG coenzyme reductase inhibitors. Mechanism of action देख लेते हैं। Yes, ये कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करते हैं कन्वर्जन ऑफ 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटरल कोएंजाइम विच इज HMG कोएंजाइम, उसको इनहिबिट करते। क्यों इनहिबिट करते हैं, बिकॉज यही एंजाइम जो है ये क्या करता है, ये इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं विच इज HMG कोएंजाइम रिडक्टेज, जो हमारे स्टैटिन्स है। क्यों इसको ये इनहिबिट करते हैं, बिकॉज यही एंजाइम HMG कोएंजाइम को मेवालोनेट में कन्वर्ट करता है, जिससे आगे कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होगा। तो इनडायरेक्टली कैन आई से दैट ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे हैं, और यही स्टेप है दैट इज अ रेट लिमिटिंग स्टेप। सो अगर हम इसी को इनहिबिट करते हैं, सो देन द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस विल बी ब्लॉक्ड। ओके, थेरेप्यूटिक डोसेस रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस बाय 20 to 50% कम हो जाता है सिंथेसिस। अगेन दिस इज अ गुड थिंग। This results in compensating increase in LDL receptor expression on liver cells। अभी obviously कोलेस्ट्रॉल कम हो गया है तो LDL receptors बढ़ जाएंगे लिवर पे, so that ज्यादा से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वो ले सके और बढ़ा सके। So ये increased receptor mediate uptake and catabolism होगा IDL और LDL का, ठीक है। हमारे लिए ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिन्स आर द मोस्ट पावरफुल LDL लोअरिंग एजेंट्स। तो सबसे ज्यादा LDL को जो कम कर सकता है वो होते हैं स्टैटिन्स। ओके, coming on to the next part. Now,
एक्टिविटी ऑफ HMG कोएंजाइम में रिडक्टेज, ये जो एंजाइम है जिसको हम इनहिबिट कर रहे हैं, उसकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा नाइट में होती है, इसीलिए हम स्टैटिन्स जो है वो नाइट में ही देते हैं, सो दैट वी इनहिबिट व्हेन इट्स एक्टिविटी इज एट मैक्सिमम और एट पीक. ओके, स्टैटिन्स. कुछ ड्रग्स के बारे में देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रेंस रिलेटेड पॉइंट्स जो होंगे. जैसे लोवास्टैटिन है, ये जो होता है ये फर्स्ट था जो इट वाज यूज्ड एज स्टैटिन. इट वाज लिपोफिलिक, ओरली देते हैं. इट इज इन द प्रिकर्सर लैक्टोन फॉर्म. ओके, एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फर्मेंटेशन प्रोडक्ट ऑफ फंगी Aspergillus terreus and Monascus ruber. तो पहले ये फर्मेंटेशन से मिलता था, Aspergillus terreus and Monascus ruber. Coming on to the next part, pitavastatin. It is the most potent statin. पिटावा पोटेंट, याद रहेगा. ओके, नेक्स्ट रोसुवा, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स. रोसुवास्टैटिन लॉन्ग एक्टिंग है, फॉलोड बाय अटोरवास्टैटिन. तो ये काफी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए काम करेंगे. अटोरवास्टैटिन हैज द हाईएस्ट एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एफिकेसी, मतलब सबसे ज्यादा अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कोई कम कर सकता है वो है अटोरवा. Now, in patients with raised triglyceride levels, Rosuva raises HDL by 15 to 20%. Okay, greater rise than other statins. तो रोसुवा जो होता है ये HDL को भी बढ़ाता है by 15 to 20%, जो सबसे ज्यादा है compared to any other statins. तो रोसुवा is long acting as well as it is increasing the HDL, which is a good cholesterol. Okay, so ये कुछ important points ही मैंने लिए हैं जो हमें याद रखने हैं. Next part. Statins, they have additional antioxidant, anti-inflammatory, anti-proliferative properties. इन्हीं properties को pleiotropic effects भी बोलते हैं. इसीलिए they lower the risk of stroke and MI, that is myocardial infarction. तो इनके ये extra properties है जो बहुत beneficial है to prevent stroke and MI. Okay, going ahead. और कुछ ड्रग्स देख लेते हैं. लोवा एंड सिम्मा, दीज आर लैक्टोन्स एंड दीज आर प्रो ड्रग्स. ओके, सो ये हम स्ट्रक्चर्स में हमें पता चल जाएगा. लोवा एंड सिम्मा लैक्टोन्स एंड प्रो ड्रग्स वो हाइड्रोलाइज होते हैं टू रिस्पेक्टिव बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स. नेक्स्ट, प्रावास्टैटिन्स, ये हाइड्रोफिलिक है. हम लोग ने देखा तो लोवास्टैटिन तो लिपोफिलिक था, ये हाइड्रोफिलिक है. क्यों हाइड्रोफिलिक है? बिकॉज ऑफ इट्स ओपन लैक्टोन फॉर्म. ओके, सो इसमें आपको ओपन लैक्टोन फॉर्म मिलेगा और इसी के वजह से उसका सीएनएस पेनिट्रेशन कम हो जाएगा. बिकॉज ये हाइड्रोफिलिक हो गया, इसका सीएनएस पेनिट्रेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए सीएनएस साइड इफेक्ट्स कम हो जाएंगे. करेक्ट. सो प्रावा में सीएनएस साइड इफेक्ट्स काफी कम होते हैं. दे आर गिवन इन द एक्टिव फॉर्म. आल्सो इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय सल्फेशन, दैट इज नॉन माइक्रोसोमल, thus has least chance of drug interactions. Food increases the absorption of all drugs except prava. तो food के साथ लो, so absorption is increased, exception again prava. अटोरवा, फ्लूवा, रोसुवा आर फ्लोरीन कंटेनिंग कंटेनर्स. हमें ये भी स्ट्रक्चर्स में पता चल जाएगा कि कौन से है. यू कैन रिमेंबर इट एज FAR. फार, फार इज फ्लोरीन कंटेनिंग कंटेनर्स. ओके, ना ये स्ट्रक्चर है लोवास्टैटिन का. तो इसके रिंग देखो, ये एक रिंग है, ये एक रिंग है और ये है. हमें इसे तीन ही चीज के बारे में याद रखना है. तो ये रिंग जो होते हैं उसको बोलते हैं हेक्साहाइड्रोनैफ्थलीन रिंग. ये रिंग को बोलते हैं मिथाइल ब्यूटानोइड और इस रिंग को बोलते हैं 6-ऑक्सोऑक्सान. तो दिस रिंग इज हेक्साहाइड्रोनैफ्थलीन, दिस इज मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटानोइड एंड दिस इज 6-ऑक्सोऑक्सान. समझा? अभी ये लैक्टोन रिंग जो है अगर ये ओपन फॉर्म में हो तो हम लोग ने बोला था ये हाइड्रोफिलिक हो जाता है जैसे प्रावास्टैटिन में था, और सीएनएस पेनिट्रेशन कम होगा जिसकी वजह से सीएनएस साइड इफेक्ट्स कम हो जाएंगे. अभी स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट देख लेते हैं. ये लोवास्टैटिन का जो ऑलरेडी हमने देखा है. दिस इज अबाउट योर सिम्वास्टैटिन. सिम्वास्टैटिन में डिफरेंस अगर दोनों स्ट्रक्चर में कंपेयर करो, ये भी सेम है, ये भी सेम है. यहाँ पे सिर्फ एक मीथाइल एक्स्ट्रा है. So it is 2,2-dimethyl butanoid. So just one methyl is extra in simvastatin. The rest all is same. Now coming on to pravastatin, मैंने बोला था it is hydrophilic because of this open lactone ring. तो ये lactone ring खुल गई है और इसको बोलेंगे, इस पार्ट को बोलेंगे 3,5-dihydroxy. Dihydroxy 1 2 3 4 5 6 7 heptanoic acid. ओके, हेप्टानोइक एसिड. बाकी अगेन सेम एज लोवास्टैटिन, सिर्फ यहाँ पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया है बिकॉज ऑफ विच ये अगेन हाइड्रोफिलिक हो गया. सो हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है एंड ये ओपन लैक्टोन रिंग. ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. यस, ये अटोरवास्टैटिन है. इसका स्ट्रक्चर काफी अलग है कंपेयर टू अदर स्टैटिन्स. इसमें अगर देखो तो ये डाइफिनाइल पाइरोल रिंग है.
Okay, this is diphenyl pyrrole. This is again the same thing, हेप्टानोइक एसिड 3,5 डाइहाइड्रोक्सीहेप्टानोइक जो प्रावास्टैटिन में था. ओके, फ्लोरीन है इसमें, हम लोग ने फार याद किया था. ठीक है, सो फार फॉर फ्लोरीन कंटेनिंग, जिसमें ए इज फॉर अटोरवास्टैटिन. नाउ दिस वन इज योर रोसुवास्टैटिन. इसमें अगर आप देखो तो पाइरिमिडिन रिंग है. विच इज दिस रिंग? पाइरिमिडिन. यहाँ पे सल्फामॉइल ग्रुप है, दिस इज सल्फामॉइल ग्रुप. और ये जो है इट इज सेम, जस्ट दैट यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया है, जिसके वजह से हम इसको बोलते हैं 3,5 डाइहाइड्रोक्सी हेप्ट 6 इनोइक एसिड. सो यहाँ पे इन आ गया है, इसलिए इनोइक एसिड एंड अनसैचुरेशन इज प्रेजेंट. सो पाइरिमिडिन रिंग किसमें होती है? रोसुवा में. पाइरोल रिंग किसमें होती है? अटोरवा में. डोंट फॉरगेट दिस. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू इज फ्लुवास्टैटिन. हम लोग ने किया था पता है, फार से एफ वाज फॉर फ्लुआ, जिसमें फ्लोरीन ग्रुप होता है. अगेन इट हैज इंडोल रिंग. कौन सा है? इंडोल रिंग. एंड यू हैव अगेन द सेम थिंग, 3,5 डाइहाइड्रोक्सी हेप्ट 6 इनोइक एसिड. ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू पिटावास्टैटिन. पिटावा में क्विनोलिन रिंग होती है. वी हैव टू रिमेंबर दिस रिंग्स ओनली. इंडोल किसमें है? फ्लुआ में. क्विनोलिन किसमें है? पिटावा में. ओके, वैसे ही पाइरिमिडिन किसमें है? ये सारी पाइरोल किसमें है? यही हमें आगे आएगा, यही क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे. अगेन ये पार्ट सेम है. ठीक है, फ्लुआ पिटावा. ओके, एंड अगेन दिस साइक्लोप्रोपाइल रिंग. तो साइक्लोप्रोपाइल रिंग दिख गई और क्विनोलिन आ गया, मींस इट इज पिटावास्टैटिन. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, इसके एडीआर इंपॉर्टेंट है काफी. मसल एक्स आर द कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट. मसल एक होता है बिकॉज ऑफ स्टैटिन्स. मायोपैथी होता है. अगेन इट इज ओनली सीरियस रिएक्शन बट इज रेयर. ओके, रैप्डोमाइलोसिस भी काफी देखा गया है. सो हमें 3 ही याद रखते हैं, मसल एक्स, मायोपैथी एंड रैप्डोमाइलोसिस. इसके ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं. Uses: statins are the first choice drugs for primary hyperlipidemias with raised LDL and total cholesterol levels. तो ये first choice है जब भी LDL और cholesterol levels बढ़ जाते हैं. Without TG levels raised, and also for secondary hypercholesterolemia जिसमें diabetes या nephrotic syndrome भी हो सकता है. They are the first choice drugs for dyslipidemia and diabetics. So diabetics में अगर dyslipidemia होता है, statins are always preferred as a first choice. तो यूज काफी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू इसके ब्रांड. ये नाइपर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. लिपिटर फेवरेट है उनका. लिपिटर ऑफ अटोरवास्टैटिन बाय फाइजर. इट इज वेरी पॉपुलर ब्रांड ऑफ फाइजर. लिपिटर. ओके, किसका है? फाइजर का ऑफ अटोरवास्टैटिन. क्रेस्टर इज अगेन रोसुवास्टैटिन ऑफ एस्ट्राजेनेका. सो दिस इज क्रेस्टर ऑफ रोसुवा. आर फॉर रोसुवा, एस्ट्राजेनेका. एमसीक्यूज पे आते हैं. एमसीक्यूज आया था जीपैट 2013 का. एडवर्स इफेक्ट ऑफ सेरिवास्टैटिन. अरे सेरिवा तो हमने पढ़ा ही नहीं, बट ये 2013 का एमसीक्यूज है. विल स्टडी देम. हायर रिस्क ऑफ रैप्डोमाइलोसिस, ये है. एनाफाइलैक्सिस होगा, या हेपेटिक डिसऑर्डर, या हीमोलाइटिक अनीमिया. हमने 3 ही चीज पढ़ा था. मसल में प्रॉब्लम होगा, मायोपैथी होगा और रैप्डोमाइलोसिस होगा. तो क्या होना चाहिए आंसर? रैप्डोमाइलोसिस. तो आंसर इज हायर रिस्क ऑफ रैप्डोमाइलोसिस. सेरिवास्टैटिन had higher risk of rhabdomyolysis, जिसके वजह से उसको विड्रॉ किया था फ्रॉम द मार्केट इन 2001. तो ये 2013 का था. अभी कोई भी स्टैटिन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बट द एडीआर इज कॉमन, दैट इज rhabdomyolysis. Okay, coming on to the next, the basic ring present in atorvastatin. ये NIPER 2021 का क्वेश्चन था. Okay, so this is very very important. Which is the ring? Is it naphthalene? Is it pyrrole? Is it pyrimidine or is it indole? ये हमने देखा था अटोरवास्टैटिन में कौन सी रिंग होती है. Yes, it is pyrrole ring. Okay, so naphthalene किस में थी? लोवा, सिम्वा एंड प्रावा में थी. हम लोग ने पहले जो 3 ड्रग देखे ना, लोवा, सिम्वा, प्रावा, उसमें naphthalene थी. करेक्ट. हेक्साहाइड्रोनैफ्थलीन हमने बात किया था. ओके, प्रावा, पाइरोल रिंग वाज इन अटोरवास्टैटिन. पाइरिमिडिन वाज इन रोसुवा, PR याद रखो. और इंडोल रिंग वाज इन फ्लुवास्टैटिन. सो हमें ये रिंग्स याद रखनी है. एडीआर याद रखना है. यूजेस है, कुछ बेसिक्स है. एलडीएल वगैरह क्या होता है, आईडीएल, वीएलडीएल, कौन किसमें कन्वर्ट होता है, ये बेसिक्स हमने आज सब क्लियर कर दिए. स्टैटिन्स वी आर डन. Okay, this much is enough from your both entrance point of view. So thank you so much. Thank you for your time. If you like this video, then please do like, share and subscribe. Also press the bell notification on so that you get daily updates on the videos being posted. Also, we have a free WhatsApp group where we post daily MCQs regarding GPAT or NIPER. Also, for further details, you can contact on the number given below.
Also, do follow us on Instagram, Facebook, and LinkedIn for further information. Thank you so much.